Good morning, student. Welcome you all. So, how are you all? Hope you all are very great. So, today I'm going to start a very interesting chapter that is Holi, and you all know that we have already done the first part of this particular chapter. So, today's we are going to start the second part of this particular chapter. So, as you all know, that this story revolves around only one character, that is Bholi, and his real name is Sulekha. She is famous for this name means she is known as Bholi because she was a very simpleton girl. She stammered a lot, and on her face there are lots of spots because of smallpox. Smallpox is a disease. So let's see what happened next with this little girl and what happened next in this particular story. Bholi did not know. So here आप देखेंगे पेज नंबर 57 अकॉर्डिंग टू माई बुक मीन्स जो मेरे पास अभी है उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 57 पैराग्राफ नंबर 1. So Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. But she was glad to find so many girls, almost of her own age, present there. She hoped that one of these girls might become her friend. So, अब जब उसके father Ramlal sent her into the school, so Bholi actually don't know ki what is that school look like or what exactly a school. So, but she was very happy. She was very glad कि there are so many girls जो almost उसके ही age के थे और she hoped कि one of them maybe become her friend. So the lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could अंडरस्टैंड नथिंग. सो अब क्या था क्लासरूम में मैम ने यानी जो उनके टीचर थे उन्होंने कुछ बोला बट भोली दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर भोली जब वो स्कूल में आई तो भोली कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल. द कलर्स फैसिनेटेड हर. सो वो जो भी पिक्चर्स थे क्लासरूम में वो उसको देख रही थी एंड द कलर्स ऑफ दैट पिक्चर्स just attracted her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. अब वहाँ पे एक हॉर्स था एंड द हॉर्स इज इन ब्राउन कलर और वो हॉर्स बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा तहसीलदार जब गांव में विजिट करने आए थे जिस हॉर्स पर बैठकर सेम टू सेम वैसा ही वो हॉर्स था. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स. तो जिस तरह की नेबर्स उनके गोट के पास थी मीन्स भोली के नेबर्स के पास थी जिस तरह की गोट एग्जैक्टली वही गोट वो उन पिक्चर्स में देखती है. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard and in the mango orchard. तो जब वो उस पैरेट को देखती हैं तो एग्जैक्टली उसी तरह का पैरेट उन्होंने पिक्चर में भी देखा था. सो द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और उस पिक्चर के अंदर जो काउ थी वो बिल्कुल उनकी काउ लक्ष्मी की जैसे दिखती थी. So, and suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. So, suddenly Bholi noticed that her teacher was just standing beside her and smiling to see her. What is your name? What's your name, little one? Bo, bo, bo. She could stammer no further than that. So when her school teacher asked her name, so she said ki ba 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 means she stammered a lot that time and she said nothing means वो अपना पूरा नाम ले ही नहीं पाई. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her hand down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. So, जब अपना नाम पूरा नहीं ले पाई तो शी जस्ट स्टैंड इन अ कॉर्नर बिल्कुल हेल्पलेस बो डाउन करके हेड डाउन करके और वो कहीं नहीं देख रही थी बिकॉज वो ऊपर देख नहीं पाती थी क्योंकि शी न्यू कि सब लड़कियां जो हैं उस पर हंस रही होंगी. When the school bell rang, all the girls skewed. Skewed means ran or moved hurriedly. बाहर जाती हैं तेजी से आउट ऑफ द क्लासरूम. जैसे ही बैल लगती है स्कूल की वो सब लड़कियां क्लासरूम से बाहर जाती हैं. बट भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर. बट भोली की हिम्मत ही नहीं होती कि वो उस कॉर्नर को भी छोड़ पाए. वो उठती ही नहीं है. हर हैड स्टिल लोअर्ड. शी कैप्ट
ऑन सोबिंग, उसके जो हेड था वो अभी भी नीचे की तरफ था, सोब कर रहा था. द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, बट द टीचर वॉइस, जो टीचर उनकी टीचर थी, लेडी टीचर, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, स्वीट थी. इन ऑल हर लाइफ इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट. तो उसकी पूरी लाइफ में कभी उससे किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था, तो इट टच्ड हर हार्ट. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. भोली got up. So उसके टीचर ने बोला get up भोली, और ये कोई कमांड नहीं था, राइट, ये कोई ऑर्डर नहीं था. बहुत ही फ्रेंडली वे में उन्होंने भोली को कहा, भोली खड़े हो जाओ ना, टेल मी योर नेम. और उन्होंने पूछा अपना नेम बताओ. स्वेट ब्रोक आउट ऑफ हर होल बॉडी. स्वेट मीन्स उसकी पूरी बॉडी में से पसीना आने लग गया. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस है, मतलब उसको यही फील हो रहा होगा कि वो अभी वापस वो ह्यूमिलेट होगी, राइट, इंसल्टिंग फील होगी, क्योंकि उसकी जो स्टैमरिंग टर्न है वो वापस उसको वो करने नहीं देगी, राइट, उसको अब उसका नाम लेने नहीं देगी. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, हाउ एवर शी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट, शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर. तो वो बोल रही है कि बहुत ही सूदिंग वॉइस में कि बच्ची को बहुत प्रॉब्लम हो, तो वो हंसेंगी नहीं उस पर, तुम अपना नाम बोलो. वो स्टार्ट करती है अपना नाम भ भ भो बोलना, बट शी बिगिन टू स्टैमर, वो स्टैमर करना स्टार्ट करती थी एज यूजुअल. वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर. तो टीचर वर लाइक कि शी वॉज एनकरेज्ड हर, ऐसा नहीं है कि वो उस पर हंस रही थी, उसको ऑल द टाइम एनकरेज कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी. कम ऑन नाउ द फुल नेम, वो उसको ट्राई कर रही थी कि वो कैसे ना कैसे करके समहाउ वो अपना नाम बोल सके. So Bholi, at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. So somehow she was said her name, और उसे एक बहुत relief मिल रहा था कि, और maybe it was a very great achievement for her. Well done. The teacher patted her affectionately. Affectionately means very lovingly manner. बहुत love से उसको pat करते. Pat means just ऐसे करना, right? Put the fear out of your heart and you will be able to speak like anyone else. She said means भोली टीचर said कि तुम जो डर है तुम्हारे दिल से वो हटा दो, तुम भी जैसे सब बाकी लोग बोलते हैं वैसे तुम भी बोल पाओगी, ठीक है, तो डर जो है उसको हटा दो. भोली looked up as if to ask really. भोली ने जैसे उन्होंने लाइन बोली, भोली ऊपर देखती और बोलती सच में, रियली, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी. Her teacher said, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम कर पाओगी, क्या तुम स्कूल आओगी every day? भोली nodded. So here the word nodded means bow your head in a direction to give your approval. So अपना हाथ ऐसे सर नीचे करके और approval की, हाँ, भोली nodded कि मैं आऊंगी, कुछ इस तरीके से. No, say it aloud. So टीचर ने कहा ओके, डू नॉट नोडेड, जस्ट से इट. yes. And Bholi herself was astonished means impressed by her and greatly surprised that she had been able to say it. वो yes भी बोल पाई पूरा अच्छे से, तो she was surprised to see her कि वो ऐसा बोल सकती है. Didn't I tell you? Now take this book. So teacher कहती है अच्छा देखो मैंने तुम्हें बोला था ना. Okay, now take this book. इस book को रखो. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. जो books थी जो उसके टीचर ने उसको दी थी, almost it's full of very beautiful pictures. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow, just like Lakshmi. Every creature was there. And with every picture was a word in big black letters. और हर पिक्चर के बाद एक वर्ड था जो बहुत ब्लैक लेटर्स में मेंशन था. In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. So कह रहे हैं कि इस मंथ में आप ये बुक पढ़ो, then another month I will give you the bigger book, और तुम एक दिन क्या हो जाओगे, एक लर्न पर्सन बन जाओगी और सबसे बेटर हो जाओगी इस विलेज में. Then no one will ever be able to laugh at you, और फिर तुम पे कोई नहीं हंसेगा. People will listen to you, will respect, and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? तो कह रहे हैं कि people लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, they give respect to you, and you will definitely speak without any stammering. Understand? So now go home and come back early tomorrow morning. So she said means her teacher said कि अभी तो घर जाओ and come again in the morning time.
Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the schoolhouse has blossomed. Blossom means grow, bloom कर रहे हो, मतलब उसको लग रहा है कि अब हर चीज उसके लिए हो रही है, बैल जो है टेम्पल की वो उसके लिए बज रही है। जितने भी ट्रीज हैं वो बहुत ग्रो कर रहे हैं इनटू बिग रेड फ्लावर्स। ब्लूम क्या आ रहे हैं उस पर, रेड फ्लावर्स आ रहे हैं। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग, थ्रोबिंग मीन्स बीट, हर हार्ट बीट्स जो उसकी है वो फास्ट चल रही है विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और जो उसकी हार्ट बीट्स है वो बिल्कुल न्यू होप और न्यू लाइफ के लिए रेडी है। दस द ईयर पास्ट, अब जैसे जैसे ईयर पास होते हैं द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। अब जो विलेज था इट बिकेम अ स्मॉल टाउन। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और जो प्राइमरी स्कूल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, एक हाई स्कूल में। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। गिनिंग मिल क्या होता है, सेपरेटिंग रॉ, ये रॉ है राइट, RAW, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। सो इट्स रॉ, RAW नॉट RWA, राइट। तो वो जो रॉ मतलब कच्चा कॉटन वहाँ पे बीज से बनते थे, वहाँ की वो मील थी। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। अब ट्रेन भी स्टेशन पे आती थी, प्राइमरी स्कूल थी, सेकेंडरी हो गई थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। तो हेयर इज अनदर कैरेक्टर। तो रामलाल सेड कि मैंने जो बिशंबर का प्रपोजल है वो क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब हु इज बिशंबर हियर, लेट्स सी। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, Boli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. Oh, Bishambar is the bridegroom. जो कौन होने वाला है ब्राइडग्रूम किसका, भोली का। तो उसकी वाइफ कहती है कि बिशंबर जो है वो परफेक्ट ब्राइडग्रूम होंगे फॉर भोली। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। वो कह रहे हैं उनके पास एक बड़ी शॉप है, उनका खुद का घर है और बहुत सारे पैसे हैं उनके पास बैंक में। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डायरी, और इसके अलावा उन्होंने किसी डाउरी, डाउरी मीन्स दहेज के लिए भी हमें नहीं बोला है। दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग यू नो। वो रामलाल कहते हैं हाँ ये सब ठीक है बट वो इतना यंग नहीं है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो बिल्कुल मेरी एज का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, लिम्स मीन्स थोड़ा पैर डिफेक्टेड है उनका। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, मीन्स जो फर्स्ट वाइफ से उनके जो बच्चे हैं वो भी अब ग्रोन अप है, मतलब बड़े हो गए हैं, तो वो छोटा नहीं है। और भूली के लिए, भूली बहुत छोटी बच्ची है, उसके लिए इतना बड़ा पर्सन, तो ठीक है उसके पेरेंट्स ने उसके लिए डिसाइड किया था। तो एंड हिज नेम इज विशंबर्स, right? So with this we come to an end with the part second. So we will continue this chapter in our next video. So till then take care of yourself and thank you for watching this video.